So hello everyone, I hope all of you are fine. So I will start this session with my introduction that my name is Jitan Somaya. I have qualified the GATE for the 2 times. My latest or recent GATE score is AIR 499 with 60 marks. So we were discussing about the stability of the system using RH criterion from the control system subject and specifically for the EE and EC branch. So do subscribe this channel and share this video with your friends more and more. So I've told you in the previous video that we'll discuss about the third order characteristic equation with some shortcuts. So I will start my video with the third order characteristic equation. We'll discuss about the characteristic equation for the third order actually, because we are having one shortcut है ना, तो मतलब एक शॉर्टकट है, तो यहाँ पर हम लोग वो भी डिस्कशन कर लेते हैं. थर्ड ऑर्डर के लिए स्पेसिफिकली ऑल द कोफिशिएंट्स शुड बी द पॉजिटिव कोफिशिएंट्स एंड द अनदर थिंग इज दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फ्रॉम means it should start from the s raised to 3 and it should end up to s raised to 0 एक्चुअली है ना. तो मतलब ये s raised to 3 से स्टार्ट होना चाहिए, s raised to 0 तक जाना चाहिए एंड ऑल द s पावर शुड बी present actually in the characteristic equation, then and then you can apply this shortcut. एक तो ये पॉजिटिव कोफिशिएंट्स होने चाहिए सबके सब और हर एक पावर s का अवेलेबल होना चाहिए एंड s raised to 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तब जाकर आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो. ओके सर, तो अब देखो now you people are knowing about this thing that how to create the RH array. It is okay, s raised to 3, s raised to 2, s raised to 1, s raised to 0, a c b d. Okay, then cross multiplication bc minus ad by b, then 0, then this minus 0 divided by this means d. Okay, so now sir, how we can comment on the stability? You people are knowing about it, that suppose if this thing means if a b c, suppose if these all are the positive coefficients, बट अब यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, सपोज इफ बी सी, मतलब यहाँ पर कंडीशन भी लिख देता हूँ आपको कि अब इसको पॉजिटिव, अब इसको स्टेबल बनाने के लिए कंडीशन कौन सी हो जाएगी, दैट बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना. अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो आपको पता है कि साइन चेंजेस वाला कंसेप्ट आ जाएगा. अगर साइन चेंजेस हो रही है देन यू कैन कॉल इट एज अनस्टेबल सिस्टम एक्चुअली है ना. तो भाई ये तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो भाई ग्रेटर देन 0 होने के लिए वापस आप लिख सकते हो दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 0. नाउ बी सी माइनस ए डी ग्रेटर देन 0, नाउ बी सी ग्रेटर देन ए डी. तो भाई स्टेबल होने के लिए आपके पास ये कंडीशन आ गई, बी सी ग्रेटर देन ए डी. ओके सर, बट सपोज इफ बी सी इज लेस देन ए डी देन यू कैन कॉल इट एज अनस्टेबल सिस्टम. क्लियर, बिकॉज if bc is less than ad then it will give you the negative coefficient over here. तो अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, तो अनस्टेबल हो जाएगी सिस्टम. सो सपोज इफ बी सी ग्रेटर देन ए डी देन यू कैन कॉल इट एज स्टेबल. सपोज इफ बी सी लेस देन ए डी देन यू कैन कॉल इट एज अनस्टेबल. एंड सपोज इफ यू आर गेटिंग बी सी इज इक्वल टू ए डी then it is nothing but the marginally stable system. Marginally stable system कैसे sir? Because you are getting the row of zeros actually, that purpose you can call it as marginally stable system. But I will make one separate video based on that type of concept है ना, based on the auxiliary equation concept. Now आपके पास आ गया एक shortcut that suppose if you are having this type of characteristic equation then only you have to comment on the stability. what you have to do that bc greater than ad, तो सर स्टेबल है, bc लेस देन ad तो सर अनस्टेबल है, bc इज इक्वल टू ad सर मार्जिनली स्टेबल है. तो चलो यहाँ पर आ जाओ. अब ये एग्जांपल 3 तरह के एग्जांपल्स मैंने ले रखे. सो सपोज इफ यू वांट टू कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी देन जस्ट चेक इट ओवर हियर. 6 इंटू 3 मीन्स 18 ग्रेटर देन 6, तो सर स्टेबल है ये सिस्टम. तो ओके, विदाउट सोल्विंग है ना, विदाउट सोल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन and without creating this RH array actually you can comment on the stability by this shortcut है ना. So this shortcut will be very very helpful to you people है ना, if you are getting this type of characteristic equation then and then. So over here 2 less than 3, okay, bc is less than ad, so sir unstable system. Very good, very good. Now 2 is equal to 2, तो सर bc is equal to ad we are getting, so
say it as marginally stable system. क्लियर? तो ये एक शॉर्टकट थी जो आपको पता होना चाहिए, एंड इट विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी वेरी इजी. क्लियर? एंड within fraction of seconds you will be able to comment on the stability actually. Clear? If you are having this type of characteristic equation then and then. Clear? Okay sir. अब now suppose if you are having this type of characteristic equation, है ना? ओके, तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने क्यों लिया, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है. देखते हैं इसको सोल्व करके. क्लियर? 1 3 5 over here 2 4 6 okay. So what we are discussing actually, that 2 3 okay, so 2 4 and 6 it is okay. Now see also from this row you can take the 2 as common actually, है ना. So we can take the 2 as common actually. So over here what you will get, just wait for a minute. Okay, no issue. Now I will not be able to erase it, है ना, because I have saved this writing actually, that's why. Okay, no issue. So now 6 minus 4 2 2 divided by 2 means you will get 1. Then 10 minus 6 4 4 divided by 2, so you will get 2 over here, then 0 over here. Okay, so now 4 minus 4 divided by 1, so you will get 0 actually over here, 0. Then 6 minus 0 divided by 1 6, and then over here you will get 0. Okay, so now what we can do, sir, over here that 0 minus 6 divided by 0, so you will get infinity actually, infinity over here na, because 0 will be in the denominator part actually, है ना, over here, so you will get the infinity. So you can say that the RH array will break actually over here. तो सर वो तो ब्रेक हो जाएगा RH array, तो हम लोग कैसे कमेंट कर पाएंगे. सो फॉर दैट पर्पस what you should know about actually that by फर्स्ट कॉलम में अगर एक भी एलिमेंट जीरो आया, तो जहाँ पर जीरो आ रहा है वो रो आपको देखनी, वो रो में एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, है ना, मतलब पूरी की पूरी रो जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब सब रो के सब एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, देन यू कैन प्रोसीड अगेन. हाउ यू कैन प्रोसीड, दैट यू कैन टेक एप्सिलॉन over here instead of this 0, and that epsilon value you are taking or you are assuming actually it should be very very close to 0. क्लियर? यहाँ पर वापस से मैं बोल रहा हूँ, मैं रूल भी बता दूंगा राइटिंग में, बट यहाँ पर सी सर एलिमेंट मतलब फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट यहाँ पर 0 आ गया, तो आपने बोला था कि उसकी रो देख लो, तो अगर रो में एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो एक्चुअली, देन यू कैन टेक इट एज एप्सिलॉन, एंड दिस एप्सिलॉन शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू 0. तो मतलब समझ लो एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग ये ले रहे हैं, तो मतलब इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 0 ना, यू कैन से ना. तो फॉर दैट पर्पस मीन्स वी आर नॉट ब्रेकिंग एक्चुअली द RH array, है ना, वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड एक्चुअली, है ना. तो यहाँ पर 0 की जगह पर आपको क्या लिखना है, 0 की जगह पर आपको क्या लिखना है, एप्सिलॉन, नथिंग एल्स. ओके सर, एप्सिलॉन लिख लिया, मतलब वो 0 के नज़दीक की ही कोई वैल्यू हम लोग एज्यूम कर रहे हैं. ओके, एप्सिलॉन ले लिया. अब 2 एप्सिलॉन माइनस 6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन. तो एप्सिलॉन की वैल्यू तो आपको मालूम है कि सपोज ये या तो उससे भी छोटी वैल्यू होने वाली है, मतलब इफ़ यू विल मल्टीप्लाई इट विद द 2 देन
definitely it is nothing but very smaller value than this 6. So smaller value will be subtracted, or you can say, sorry, bigger value will be subtracted from the smaller value, then you will get the negative value actually. So negative value आपको यहाँ पर मिलेगी divided by epsilon, so you will get actually the negative value. सो यहाँ पर मैं सिंपली नेगेटिव वैल्यू ही लिख रहा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं. ओवर ईयर अगेन 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन मीन्स यू विल गेट 0. ओवर ईयर अगेन यू विल गेट 0 मीन्स सी. आई एम एज्यूमिंग द एप्सिलॉन विच इज़ वेरी क्लोज टू 0. अब मैं 0 नहीं बोल रहा हूँ इसको, मैं कोई भी वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस. क्लियर? ओके. अब नाउ नेगेटिव वैल्यू इंटू 6, so you will get negative minus 0 divided by negative value, so you will get the positive value. Whatever you will get actually you will get the positive value. Clear? Then 0 0. अब देखिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव क्यों लिखा, वापिस से देख लो. यू कैन राइट ओवर हियर एक्चुअली दैट सी, यहाँ पर आप नेगेटिव मैंने लिखा जो नेगेटिव वैल्यू, उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते थे कि लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 टू एप्सिलॉन माइनस 6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये आप लिख सकते थे यहाँ पर. बट यहाँ पर मुझे पता चल गया था कि नेगेटिव वैल्यू ही मिल रही है, तो मैंने सिंपली नेगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेट कर दिया. देन 0 0 अगेन दिस नेगेटिव वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विथ 6, सो यू विल गेट नेगेटिव, then again minus 0, so it will remain negative, and again it will be divided with the negative, means if negative value will be divided with the negative value then it will be converted into the positive value. तो यहाँ पर मैंने simply positive value लिख दिया. then 0 0. so now आपको क्या पता चला कि सर यहाँ पर अगर फर्स्ट कॉलम में एक भी एलिमेंट 0 आ गया तो उसकी रो देखनी है. अगर वो रो में एटलीस्ट इफ वन एलिमेंट इज नॉन जीरो अवेलेबल, देन यू कैन प्रोसीड forward and you can assume any value which is very close to 0 and you can put it over there instead of that 0. क्लियर? तो मतलब वो 0 की जगह पर एप्सिलॉन एज्यूम कर सकते हो, और वो एप्सिलॉन की वैल्यू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, मतलब कोई भी एक 0 के नज़दीकी वैल्यू आप एज्यूम कर रहे हो और वापस से आप प्रोसीड फॉरवर्ड कर सकते हो. क्लियर? और किस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव आया पॉजिटिव आया वो भी यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर लिया. अब आई बात स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करने की. तो आपको फर्स्ट रो देखना है, सॉरी फर्स्ट कॉलम आपको देखना है. सो ओवर हियर यू आर गेटिंग द पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगेन दिस इज नथिंग बट द पॉजिटिव वैल्यू ना, बिकॉज 0 की नज़दीकी वैल्यू हम पॉजिटिव वैल्यू एक चूज कर रहे हैं इसलिए. नाउ ओवर हियर नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव. सो सर यहाँ पर 2 नंबर ऑफ साइन चेंजेस मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव में से नेगेटिव हो रहा है, एक नेगेटिव में से पॉजिटिव हो रहा है. तो 2 नंबर ऑफ साइन चेंजेस वी आर गेटिंग एक्चुअली. सो 2 नंबर ऑफ poles are lying on the RHS and the system is unstable system. तो आपको डरना नहीं है कि अगर भाई इफ यू आर गेटिंग एनी 0 है ना इन द फर्स्ट कॉलम, देन देयर इज नो नीड टू अफ्रेड ऑफ इट. क्लियर? तो यहाँ पर रूल भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपको साथ साथ. If any element of the first column will become 0, then check its row, and if any non-zero element is present in that row, then you can replace this 0 by epsilon, which is nothing but epsilon tends to 0, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0. मतलब यहाँ पर अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ तो आप ये 0 को एप्सिलॉन से कन्वर्ट कर सकते हो. क्लियर? एंड वी आर एज्यूमिंग दिस एप्सिलॉन विच इज़ वेरी क्लोज टू 0, एंड यू कैन ऑल्सो एज्यूम वन वैल्यू है ना टू मेक द कैलकुलेशन ईजी. एप्सिलॉन इज इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए 0.00001 है ना, तो आसानी हो जाएगी आपके कैलकुलेशन के लिए. क्लियर? नाउ विल सॉल्व दिस ग्रेट एग्जाम्पल है ना, विच इज नथिंग बट द गेट क्वेश्चन एक्चुअली.
So over here the first column elements of Raoult's tabulation of a characteristic equation are 2, 1, -7, 6.43 and 10. Which of the following statement is not true? देखिए सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है कि भाई क्वेश्चन ठीक से पढ़ना होता है, ढंग से पढ़ना होता है ना। और आपको क्वेश्चन अगर अंडरस्टैंड हो गया तो समझ लीजिए 50% आपका काम खत्म हो गया, है ना। अगर आपको सिंपली क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया तो। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आना बड़ी बात होती है गेट में। देखो यहाँ पर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कई बच्चे इसको ट्रू स्टेटमेंट पढ़ के निकल जाते हैं, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बाद में दिक्कत हो जाती। बट यहाँ पर पूछा क्या है, नॉट ट्रू। एंड यहाँ पर दिया क्या है कि फर्स्ट कॉलम ऑफ द RH क्राइटेरियन मीन्स 2, 1, then -7, then 6.43 and over here 10। तो ये दे रखा है एक्चुअली फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ पर ऐसा हो सकता है 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, है ना। ये जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से। तो ये फर्स्ट कॉलम दे रखा है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव से वापस से पॉजिटिव हो रहा है। क्लियर। सो यू आर गेटिंग द 2 नंबर ऑफ साइन चेंजेस एक्चुअली। सो 2 नंबर ऑफ पोल्स आर लाइंग ऑन द RHS एक्चुअली। तो भाई ये 2 नंबर ऑफ पोल्स आर लाइंग ऑन द RHS, ये सही है। तो एक बार RHS में अगर पोल लाई कर रहा है तो सिस्टम कॉन्स्टेबल बोलेंगे। और यहाँ पर देख के हमको मालूम हो जाएगा द सिस्टम इज नथिंग बट द फोर्थ ऑर्डर सिस्टम, इट इज ओके। तो भाई ये एक ट्रू नहीं हो रहा है। ये क्यों ट्रू नहीं हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज यू आर हैविंग द फोर्थ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब फोर्थ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपके पास है तो आपको 4 नंबर ऑफ पोल्स मिलने चाहिए, उसमें से 2 तो RHS में है। तो 4 में से 2 अगर RHS में है तो आपको LHS में कितने मिलने चाहिए, 2 ही मिलने चाहिए ना। क्लियर। या तो 2 से कम, अगर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हो गई तो या तो 2 या तो 2 से कम। क्लियर। तो यहाँ पर तो ऐसा लिखा है भाई कि 3 नंबर ऑफ मीन्स 3 नंबर ऑफ रूट्स आर लाइंग ऑन द LHS। सो इट इज नथिंग बट द रॉन्ग आंसर। सो एक्चुअली रॉन्ग आंसर मतलब क्या कि भाई नॉट ट्रू। सो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पर पूछा क्या गया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट C इज नॉट ट्रू एक्चुअली। सो इट विल बी योर आंसर बिकॉज दे हैव आस्क्ड अबाउट द नॉट ट्रू स्टेटमेंट। समझ में आया? क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, नाउ द रेंज ऑफ K for which all the roots of the equation s raised to 3 plus 3s square plus 2s plus k is equal to 0 are in the left half of the complex S plane is। तो मतलब आपको K की ऐसी रेंज देनी है कि वो K की रेंज के लिए पर्टिकुलरली you will get all the roots in the लेफ्ट हाफ ऑफ प्लान एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर वो पूछा क्या गया है कि भाई कि लेफ्ट साइड में ही अगर आपको ऑल द पोल्स चाहिए, है ना, देन इफ ऑल द पोल्स आर लाइंग ऑन द LHS देन यू कैन से दैट योर सिस्टम इज स्टेबल एक्चुअली। तो ओवर हियर व्हाट दे हैव आस्क्ड एक्चुअली दैट फॉर विच वैल्यू ऑफ K एक्चुअली, फॉर विच रेंज ऑफ K एक्चुअली यू विल गेट द पोल्स ऑन द RHS एक्चुअली, है ना, ऑल द पोल्स ऑन द RHS। तो मतलब उसके लिए आपकी सिस्टम तो भाई स्टेबल होनी चाहिए। इट इज नथिंग बट द मस्ट कंडीशन टू लाई द पोल ऑन द LHS एक्चुअली, है ना। तो सिस्टम स्टेबल होनी चाहिए। और ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है और वो भी पॉजिटिव कोफिशिएंट है। और यहाँ से s⁻3 s⁻2 s⁻1 s⁻0 सब पावर अवेलेबल है इसके। तो सर आपने तो शॉर्टकट दिया था कि ये सिस्टम को अभी तो हमको क्या बनाना है, स्टेबल बनाना है। देन एंड देन वी कैन से दैट ऑल द पोल्स आर लाइंग ऑन द LHS। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए सर आपने बोला था BC ग्रेटर देन AD, BC शुड ग्रेटर देन AD। तो यहाँ पर 3 × 2 मीन्स 6 शुड बी ग्रेटर देन K। ये आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। एंड K को भी हमको पॉजिटिव रखना है। तो ऑल्सो K शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज आई हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम दैट ऑल द कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव कोफिशिएंट। तो एक दूसरी ये भी कंडीशन मिल जाएगी। तो इसको सेटिस्फाई कौन सा ऑप्शन कर रहा है बेटा, ए ऑप्शन। Within 10 seconds only you can give the answer if you are knowing about that shortcut. Clear? Otherwise you can solve this question by RH array. But if you are knowing about this shortcut then within 10 seconds only you will be able to give the answer. Okay? तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
we have solved the number of questions है ना for the RH array, and in the next session we will discuss about the auxiliary equation and marginally stable system. Clear? So I hope you enjoyed this session है ना. So do subscribe this channel and share this video with your friends more and more. Thank you very much.